Hello everyone. Welcome to the series of project dissertation and implementation introduced by Technolytics Take IT Easy. In this video series, we are going to learn about how to complete project dissertation successfully. This video series is important for the students who are going to make their project in the UG or PG level, especially in the final year. In today's video, first of all, I'm going to tell you that which points we had already covered in our last video. So first, we covered how to create title page, pro forma, how to write declaration and acknowledgement, how to write abstract with keywords. Also, I had taught you how to generate table of content automatically. Then also we had also seen the chapter 1 introduction, which had contained the topics background, purpose, applicability, etc. In today's video, I'm going to teach you how to write survey of technologies. Okay, so basically this is your chapter 2 and name of the chapter is survey of technologies. Now, why we need to do the survey of technologies? The reason is that we have to select technology for our project. But before selecting any of the technology, before finalizing any of the technology, we need to do the survey. Okay. So this chapter of survey of technologies, we will elaborate on student awareness and understanding of available technologies related to the topic of the project. For example, अगर आप कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली योर टेक्नोलॉजीज यू शुड डू द सर्वे इन ऑल गेमिंग सॉफ्टवेयर्स. ओके, तो गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग एप्लीकेशंस जिसमें गेम बना सकते हैं, सो ऑल सच टेक्नोलॉजीज यू हैव टू डू सर्वे ऑन. इफ यू आर मेकिंग एनी एम्बेडेड सिस्टम, ओके, सो एम्बेडेड सिस्टम जिस भी किसी टेक्नोलॉजी में बन सकती है, आपको उसका सर्वे करना है. इफ यू आर क्रिएटिंग एनी वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन से टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं. सो आई मीन टू से कि विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट यू विल डू द सर्वे ऑफ various technologies. Okay. Second point says that the student should give the detail of all the related technologies that are necessary to complete the project. सबसे पहले तो हम सारे टेक्नोलॉजीज का सर्वे, फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन राइटअप लिखेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी 8 से 10 टेक्नोलॉजीज के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे. ओके, बट नॉर्मल 8 से 10 टेक्नोलॉजीज कॉमन नहीं होंगे. ऐसे ही टेक्नोलॉजीज होंगे जिसमें आपका प्रोजेक्ट टाइप, आपका जिस टाइप का प्रोजेक्ट है वो बन सकता है. सो सच 8 to 10 technologies you will compile together and then you will write some brief write-up on it. Okay, how you will write that I'm going to teach you in the further slides. They should describe the technologies available in the chosen area and present a comparative study of all those available technologies. अब क्या होगा कि हमारे पास 8 से 10 टेक्नोलॉजीज तो रेडी हो गए हैं, लेकिन इसमें से भी फिजिबल टेक्नोलॉजीज कौन से हैं. सो बेस्ड ऑन दोज फिजिकल टेक्नोलॉजीज वी विल डू सम कंपैरेटिव स्टडी. अब कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे, तो हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में उसके फीचर्स वी विल राइट इट्स एडवांटेजेस एंड ऑल्सो वी विल राइट इट्स डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस. अब इस कंपैरेटिव स्टडी हमारा एक टैबुलर फॉर्मेट में होगा और लास्ट में इस कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर बेस्ड explain why the student selected the one technology for the completion of the objectives of the project. इस comparison के ऊपर based, it will be easy for the student to take a decision that yes, so and so technology I'm going to select for my project, and the reason is also very clear in that student's mind, which he or she has to write in their project report. तो स्टूडेंट्स, आप इतना समझ लो कि चैप्टर 2 में आपको 4 पॉइंट्स 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 में आपको डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर 2 को, जिसमें 2.1 एक जनरल डिस्क्रिप्शन राइटअप होगा.
सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज का, कि बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या है, और मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम, आईडीई अगर कोई यूज कर रहे हो, तो सबके बारे में ब्रीफली इन पैराग्राफ यू कैन राइट। इन 2.2 आप लोग 8 से 10 टेक्नोलॉजीज के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इन 2.3 you will write the comparative study, and ultimately in 2.4 you will make the decision for, and ultimately you will select the technology for your project. Now here in brief I have given you like how you can write 2.2 list of technologies. Write list of technologies in which your project can be developed. Maximum 8 to 10 technology students you can include, and write brief introduction for each technology in maximum 2 to 3 lines. तो मतलब ये आपको बहुत क्लियरली आउटलाइन दी गई है, इसको आप कंसीडर करते हुए आप लिखेंगे 2.2 लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसका डेमो भी मैंने आगे लिखा है आपके, फॉर योर रेफरेंस आई हैव इंक्लूडेड डेमो ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज आ गई, अब इसका कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। सी गाइस, इट इज सो कॉमन, अगर हमें कोई भी गैजेट भी खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कार खरीदनी है या कोई मोबाइल खरीदना है, तो हम सबसे पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं कि कौन से मोबाइल्स अवेलेबल है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे फिजिबिलिटी के हिसाब से उन मोबाइल्स को छांटेंगे कि बाबा मेरे पास इतना ही बजट है, ओके, और एल्स मेरी रिक्वायरमेंट ये एंड ये है। तो अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से वी विल जो भी छाटेंगे उसकी उन मोबाइल की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि अगर इस सर्टेन बजट में इतने सारे मोबाइल्स हैं तो इनमें फीचर्स क्या है, इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो ये सारा कंपैरिजन होने के बाद फिर ही हम सिलेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये गैजेट लेना है। तो ये जो प्रॉपर प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस वी आर अप्लाइंग ओवर हियर, कि हम डायरेक्टली टेक्नोलॉजी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के बाद उसमें से 8 से 10 टेक्नोलॉजी छांट रहे हैं, फिर उसमें से भी फिजिबल टेक्नोलॉजी का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, और कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर वी आर टेकिंग द डिसीजन, एंड फाइनली वी आर सिलेक्टिंग टेक्नोलॉजी। ओके, सो अब यहाँ देखते हैं। So this is an example like chapter 2। ये सारा मैंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज फॉलो इट। 2.1 एग्जिस्टिंग सिस्टम, एज आई टोल्ड यू यहाँ पे बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। सो आप इसको 3-4 पैराग्राफ कॉमन में दे सकते हो कि फ्रंट एंड, बैक एंड, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एपीआईज या फिर इंटरफेसेस, इस हिसाब से आप एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को डिवाइड करके उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फिर 2.2 में लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज है। मैंने आपको क्या कहा कि 8 से 10 टेक्नोलॉजीज ले लो और हर एक टेक्नोलॉजी को ब्रीफली 2 to 3 लाइंस में एक्सप्लेन करो। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जावा है, तो जनरली आइकन्स लिए हैं सारे टेक्नोलॉजीज के, और बिसाइड द आइकन उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सो इस हिसाब से जावा, पीएचपी, ये सारे टेक्नोलॉजीज विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट था। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज कंटिन्यूएशन। सो ये सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो हम 2 से 2.2 में लिखेंगे। सो 2.2 का अपना टॉपिक था लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। नाउ 2.3 में कंपैरेटिव स्टडी है। सो प्लीज रिमेंबर दैट वी विल बी डूइंग द कंपैरेटिव स्टडी इन द टैबुलर फॉर्मेट। टैबुलर फॉर्मेट में स्टूडेंट्स आपके 4 कॉलम होंगे, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जो भी 8 से 10 टेक्नोलॉजी 2.2 में आपने कंसीडर की थी, उसमें से सिर्फ फिजिबल टेक्नोलॉजीज मैंने यहाँ पे कंसीडर की है। ओके, सो फिजिबल में कौन सी आती है, जावा, पीएचपी, पाइथन, जेसन, सी शार्प। सो ये सारे टेक्नोलॉजीज की कंपैरेटिव स्टडी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो टेबल 2.1 कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजीज लिखा है। दैट मीन्स जब भी आप लिस्ट ऑफ टेबल्स क्रिएट कर रहे हो, ये भी मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट एंड लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ
फिगर्स ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली आपका लिस्ट ऑफ टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 2.3 में कंपैरेटिव स्टडी है और 2.4 में अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आवर टेक्नोलॉजी। सो 2.4 सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड टेक्नोलॉजीज लिखी है और बाद में हर एक टेक्नोलॉजी और इसका रीजन कि मैंने ये टेक्नोलॉजी क्यों सिलेक्ट की। तो आपको कितना आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स कोई भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते वक्त। रिसर्च, survey, okay, then comparison according to the feasible technology, actually you have to compile the technologies and uska comparative study, or based on comparative study you can select the technology. So यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम है, रीजन है, अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी का नाम है एंड रीजन है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आप लोगों को ये चैप्टर लिखना है। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज। सो लेट्स रिकैप चैप्टर 2। 2.1 एग्जिस्टिंग सिस्टम, जहां पे सारा बैक एंड फ्रंट एंड ये सब कुछ आप नॉर्मल ब्रीफ में राइट अप लिखेंगे। 2.2 में लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो कितने लेने हैं, 8 से 10 टेक्नोलॉजीज। 2.3 में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजीज, जहां पे आप टैबुलर फॉर्मेट में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। टेक्नोलॉजी का नाम, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन कॉलम्स में आप फिजिबल टेक्नोलॉजी सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, सो इट कुड बी 5 to 7। एंड 2.4 में आप एक्चुअली सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोजेक्ट। सो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिखना, आपको इसके साथ उसका रीजन भी लिखना है कि व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस टेक्नोलॉजी। सो दैट इज व्हाट we have covered in this video. So in our next video, we are going to see the requirement and analysis. That is our chapter 3. So thank you so much for listening this video so patiently, and please like and subscribe our channel for more and more such practicals based on project dissertation. We have our Telegram group as well, where you can join, and you can also ask queries if you have. So guys, that's all from my side. So thank you. Take care. Have a nice day.